Good afternoon, sir. Good afternoon. कौन बोल रहा है? Summer is in the full swing with the fall and it's just arrived in the corner. Colleges are planning, but back for the professional institution development and events. Every year, school academies need to find new ways to motivate and inspire students. It's important to start the year with excitement and energy. So, today we have a personality whose introduction can be depicted in some sentences. If you save a tree, you save a life. If you plant a tree, you plant a life. If trees give good look, don't destroy them from earthwork. Think of long haul. Don't let trees fall. So we welcome Dr. Rajesh Rathore, PhD and co-founder of Diva and Ormed Nursery. So we welcome you, and now I would request our Honorable Principal Sir to please welcome today's Honorable Speaker. Welcome, Rajesh. Hi, thank you, sir. Actually, it is our privilege to have us with such a renowned personality who started so many chain pharmacy in Indore, and might be they are supporter for new entrepreneurs in the field of the medical shop. So I know very well that you are supporting many diploma student and degree student who just completed their degree and they are looking forward for the opening of medical shop. So you also supported them how to open the Jan Aushadhi Kendra. Actually, you are expert in that, and Jan Aushadhi Kendra are quite helpful for our poor populations as well as middle class population. So I hope your talk or your motivations might be helpful for my student who is looking for the development of their own medical shop, or they become a startup business in the pharma field. So again, welcome, Dr. Rajesh. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to introduce today's speaker as a part of his professional. He has done B.Pharm from SGITS Indore. He has completed his master's degree from NIPER Mohali. He has pursued PhD from TMU Germany, and he is also the former EU scientist. Now, I would like to turn the table down to today's speaker. I would like to know I think Anjali madam, आपका video and audio hang हो गया. So sir, Rajesh sir, I would like to request you, please, you may proceed now. हाँ, थैंक यू. मैं पहले सोच रहा था कि स्टूडेंट से थोड़ा सा उनका नाम जान लूं, इसी बेसिस पे थोड़ा फेस भी हो जाएगा रिकॉग्नाइज, और फिर इसके बाद हम हमारा जो टॉपिक है इसको हम बड़ा फ्रैंकली लेते हुए, और लोगों से जो भी लोग हैं, कितने हैं इसके अंदर पूरे? Around sir 90 participants are there, जिसमें से most of the students are there. Few faculty are also there. ओके. तो जो स्टूडेंट्स हैं
वो थोड़ा सा अपना एक थोड़ा सा नाम बता के और अपन आगे कर लेते हैं, एक साथ भी दिखेंगे तो वन बाय वन आप नंबर रोल नंबर वाइज बोलते रहे, उनको रोल नंबर होगा कुछ ऐसा? नहीं सर, अच्छा, एक्चुअली ये जो है पूरा मिक्स 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 है, कॉकटेल मिक्स है, है, ओके ओके, डिप्लोमा हाँ और बीकॉम का। हाँ तो हाँ आप थोड़ा सा इनिशिएट चालू हाँ करें, हाँ, उसके निश्चित के कर देता हूँ। बच्चों के जो क्वेश्चंस होंगे, अपन हाँ क्वेश्चन सेशन भी रख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, और मैं इसको ऐसा लेने का सोचा हूँ कि जैसे मैं कुछ कुछ बात बताता हूँ और उसके बाद उनको लगता है कि ये कैसे होता है, तो उसके बारे में बोलें, और जो क्वेरीज आती होंगी उसको मैं एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हुए बताते जाऊंगा, जो दूसरे लोगों की ऑटोमेटिकली वो दूसरी क्वेरीज होंगी उनको भी सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो ऐसा देयर इज नथिंग लाइक एन पीपीटी फॉर्मेट नहीं है ऐसा। तो नहीं, एक्चुअली ये तो सर आप इंटरप्रेनर है, तो ये तो जो है जनरल डिस्कशन होना चाहिए, वो तो हाँ हाँ हाँ, तो स्टूडेंट का मैंने उसी मोटिवेशन एंगल से होगा। मैंने कहा कि पीपीटी तो ऐसे मिल जाएंगे, उसमें कुछ वो नहीं है, बुक्स हाँ। हैं, सो मेनी बुक्स अवेलेबल। तो स्टार्टिंग में करूँ आपको, जैसे आपने अभी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट अभी कंप्लीट हो ही गया है, जो मेरे को समझ में आता है ना सर, इनका कंप्लीट हो ही गया फाइनल है। स्टूडेंट्स का कंप्लीट होने ही वाला है बस एक आध महीने में, तो दे आर जस्ट कमिंग आउट गोइंग हाँ, बेसिक। मतलब फाइनल ईयर ही कंप्लीट कर लिया है। तो स्टार्टिंग जब कोई भी, जैसे बहुत लोगों के पेरेंट्स भी हो सकता है कि बिजनेस में हो, अपन उनको मानते हैं कि नहीं है, और उससे फिर हम बढ़ते हैं। जैसे अब कोई, जैसे आप लोग बिजनेस में आपने जो एक 4 साल का या 2 साल का कोर्स किया है, इसमें आपने ना एक्चुअली फार्मेसी ऐसा कोर्स है जो मल्टी एंगल से काम, मल्टी डिसिप्लिनरी बोल सकते हैं उसको, कि आपको सिखाया गया है। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शन भी मिलेंगे जो अभी आपने सोचे होंगे, जो परीक्षा दी होगी कि अरे अरे ये क्यों पढ़ा हमने, लेकिन यदि आप बिजनेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसे फार्मेसी पर्सन बहुत मोस्ट सुटेबल पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एरिया का नॉलेज हो जाता है। तो अब हम स्टार्टिंग के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो उसमें ये देखा जाता है कि आपका सर्वाइविंग जनरली एक मोटे तौर से कहा जाता है कि 3 या 6 में, यदि अपन स्टार्टिंग की बहुत ज्यादा हालत में कोई खत्म होने वाला है, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया और वो 3 महीने टिकेगा, 6 महीने टिकेगा, और बहुत अच्छा माना जाता है कि वो है 3 साल। बैंक के पास में भी आप जाओगे तो बैंक भी आपको जब ये लोन देने की बात करेगी तो 3 साल का आपका बैकग्राउंड देखेगी कि फर्म को रजिस्टर्ड हुए कितने साल हो गए। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 साल में, 3 महीने में पता चलता है कि वो कितना तक आगे, कैसे अगला कदम क्या होगा, वो आप खुद एनालाइज करोगे। और 6 महीने में आपके फैमिली और आगे के लोग रियलाइज करने लगेंगे ये टिक पाएगा कि नहीं। वो 3 साल में बैंक और सरकारी जो चीजें हैं वो समझने लग जाएंगे कि ये, इसका सिस्टम कैसा है, ये सरवाइव करेगा, करेगा नहीं, मतलब फलेगा फूलेगा कि नहीं, वो डिसाइड कर पाता है 3 साल के अंदर। तो 3 साल एक लंबा कदम होता है। आपने कभी एग्जाम्पल एक बहुत टाइम सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो बांस होता है ना, बांस, वो 7 साल तक है ना, बहुत उगता ही नहीं है, आपको लगेगा क्या है, ये उग ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन 7 साल बाद वो एकदम जंप लेता है। तो बिजनेस में भी कुछ इसी ढंग का है कि थोड़े शुरू में बहुत ही तकलीफ दे रहे रहते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ करता है, और एक बार बूस्टअप आ जाती है तो वो अच्छा बूस्टअप कर लेता है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक ईमानदारी जो जिसको बोलते हैं, कि आप में ईमानदारी होना चाहिए, क्योंकि आप यदि शॉर्ट प्ले कर रहे हैं, यानी थोड़े दिन के लिए कोई भी चीज स्टार्ट करके सोच रहे हैं कि थोड़े दिन में कम आप कर लेंगे, तो वो एक बिजनेस पर्सन के लिए सही नहीं है। यदि अपन आप बात करें कि बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, बिजनेस बिजनेस मतलब क्या है, आप देखेंगे कि बिजनेस एक्चुअली हम वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सर्विस दे रहे हैं जनता। तो एक जॉब करना बोलते हैं और एक सर्विस बिजनेस करना बोलते हैं। तो बिजनेस में जो बेसिकली है, हम बिजनेस को किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, मैं जर्मनी में, यूरोप में रहा हूँ, स्पेन में रहा हूँ, इटली में रहा हूँ, और जर्मनी तो ऑफकोर्स बताया मैंने, और हांगकांग से लेकर इधर भी रहा हूँ, इंडिया में भी मुंबई, चंडीगढ़ और ऐसी जगह पे रहा हूँ। तो बिजनेस का बेसिकली यदि आप उसका मीनिंग ढंग से निकालेंगे और बड़े बड़े जो प्लेयर्स को देखेंगे जो बिजनेस में अच्छे सक्सेसफुल हो गए हैं, नारायण मूर्ति से लेकर, टाटा से लेकर, रतन टाटा से लेकर, तो बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि ये लंबी दूरी के प्लेयर रहे हैं। लंबी दूरी के प्लेयर में कैसे बना जाता है, तो सिंपल सा तरीका ये है कि अपन ईमानदार रहो अपने लिए भी, और जिसको अपन कर रहे हैं जिसके साथ काम, उसके लिए भी ईमानदार रहो।
तो जिसके साथ ईमानदार रहेंगे उसके साथ तो वो आप लंबी दूरी के प्लेयर बनते जाएंगे। हो सकता है कि आज आपको रूखी सूखी रोटी खाना पड़े, ऐसा बोलते हैं ना कि भैया शुरू में कम पैसे कमाए हम, लेकिन बिजनेस में क्योंकि आपको लंबी दूरी पे बड़े एम्पायर खड़ा करना है तो शुरू में आपको तकलीफें हो सकती हैं, और उन तकलीफों को सहते हुए भी तकलीफें आएंगी उसमें बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं यार ये शॉर्ट रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन शॉर्ट रास्ता का जो डेस्टिनेशन होता है वो भी, जो मंजिल मिलती है वो भी बहुत छोटी होती है। तो जनरली ये रहता है कि हम ऐसे रास्ते अपनाएं जो लंबी दूरी पर अपने को काम में आए। और बिजनेस का मेन ये है कि हम कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्विस हम दे सकें। अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप मार्केट में देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं वो कम चार्जेस में ज्यादा सर्विस दे रहे हैं, और बाद में जब वो अपने एरिया कैप्चर कर लेते हैं तो वो अपनी सर्विसेज बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा ही था कि जो रिलायंस आया उन्होंने सर्विसेज काफी सही दी, और बाद में जब उनको लगा कि नहीं इससे मेरा खर्चा पूरा नहीं हो पाएगा तो उन्होंने बढ़ाया। और तो एक तो ये रहा। स्टार्टअप करने में आपको गवर्नमेंट फंडिंग्स भी है स्टार्टअप करने में, लेकिन स्टार्टअप करने में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है कंपनी गवर्नमेंट के एंगल से, वो आपका कि आपके बैकग्राउंड क्या है, आप कॉन्सेप्ट चाहिए उनको अच्छा, नया कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं कि आपने बोले नहीं हम तो किराना दुकान खोलेंगे, हम मेडिकल खोलेंगे। नो डाउट देयर आर फंडिंग्स फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, लेकिन वो एक्टिविटीज क्योंकि इतनी कॉमन हो जाती है कि उसके लिए कंपटीशन बहुत हो जाती है, तो देयर आर several people are waiting for the getting the loan for that purpose। तो in that case आपको क्या है कि या तो आपके पास कॉन्सेप्ट नया हो, या फिर आप ये जो फंडिंग है वो फंडिंग के लिए फंडिंग के अपन इसको सेक्शन में फंडिंग के थोड़े चर्चा करते हैं इसके बारे में। सब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फंड की जरूरत है, नो डाउट। फंड स्टार्ट होता है आपके खुद के, या तो फर्स्ट होता है कि कलेक्शन से, या मतलब आपने जॉब करा कुछ साल, पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद उसको बिजनेस में लेके आए और उसको फिर आपने आगे बढ़ाया, और क्योंकि और दूसरा होता है कि आपके फैमिली से पैसा लेना, और थर्ड होता है कि फ्रेंड सर्कल्स में चले जाना, और या फोर्थ कैटेगरी बोले तो अपने बैंकिंग जो बैंक हैं वो लोन देती हैं वो उस कैटेगरी में चले। तो मतलब पहला अपन ये मान रहे हैं कि पहला आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फंड दे रही है, तो जनरली लोन की मनी की वाइज करें, हमको मनी की जरूरत है, नो डाउट बिजनेस स्टार्ट करना है तो मनी की तो जरूरत है। आप किराए से लेकर फर्नीचर से लेकर देर आर जो पर्सन लोग साथी जो जिनको आप हायर करोगे उनकी सैलरी, क्योंकि आपको पैसे में प्रॉफिट हो ना हो सैलरी देना श्योर शॉर्ट है ना। तो अब पैसे कहाँ से आए, तो पैसे जो तरीका है, पहला तो आप या तो आपने कुछ जॉब किया उससे कलेक्ट किया करे हो, तो आप क्योंकि पैसा जनरली आप यदि बैंक के पास सीधे लोन लेने जाएंगे तो बहुत बार ये देखा गया है कि क्योंकि ये पैसा बैंक से लिया हुआ है, आपकी हार्ड अर्न मनी नहीं होने की वजह से इसका दुरुपयोग जल्दी हो जाता है। दुरुपयोग इन द सेंस कि आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। कैसे कि जहां ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि यहाँ नहीं यार, यहाँ नहीं खर्च करना है, और यदि आपने 1000 रुपए कमाए हो तो आपको मालूम है कि 1000 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए तो मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मान लो कि आपने वो 1000 रुपए, मान लो आपने 10,000 कुछ 10 लाख रुपए बैंक से लिए, या 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए बैंक लिए, और 10,000 की पैम्पलेट छपवाई आपके जो भी फॉर्म स्टार्ट करिए उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए। और वो सुबह जो पैम्पलेट है वो आप पेपर में न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि सुबह आपके पेपर में आती है। अब लेकिन सुबह पेपर में आने के लिए वो सुबह 5-6 बजे, और या बोले कि 6 बजे तो बहुत लेट बोल दिया, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में उनको देना पड़ रही है पेपर वालों को। तो यदि आपकी वो हार्ड अर्न मनी नहीं है तो आप क्या सोचोगे, अरे यार चले जाऊंगा, और वो चले जाऊंगा, और लेकिन वो यदि वो नहीं गई टाइमली तो वो बटेगी नहीं, और हो सकता है कि वो वेस्टेज हो जाए। तो आपकी हार्ड अर्न मनी होगी तो आपको लगेगा यार 5,000 रुपए लगवाए हैं और बड़ी मुश्किल से कमाए थे मैंने, तो ये 5,000 रुपए मैं वेस्टेज नहीं होने दूंगा। तो ये नहीं होने दूंगा, तो ये ही आपका ये जो एटीट्यूड हुआ कि ये वेस्टेज नहीं होने दूंगा, ये कहाँ से आता है जनरली, ये आपके हार्ड अर्न मनी से आता है। या फिर पेरेंट्स को आपने ट्रस्ट में लिया है तो उन पेरेंट्स आपको पुश करना चालू करेंगे, बेटा वो तूने पेम्पलेट छपवाई थी वो कैसे करा, उसका क्या हुआ, तो वहां से पुश आता है। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि पेरेंट्स बिजनेस में ओवरऑल फेलियर बहुत ज्यादा होता है, एक और आपको बता दूं, लेकिन इसका दैट डजंट मीन कि बिजनेस सही नहीं है। बिजनेस ये एक जनरल लोगों की मान्यता है कि सभी चीजों में सबसे बढ़िया बिजनेस कहलाता है। उसके बाद कैटेगरी जाती है आईएएस आईपीएस अधिकारी की, और फिर दूसरी कैटेगरी, ये जनरल है, ऐसा कोई इसमें
कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और ऐसा, ये मेरा भी अनुभव भी बोल सकते हैं, मेरे विचार बोल सकते हैं इसमें आप। तो आपने ये देखा कि बिजनेस में यदि आप सक्सेस होते हैं बिजनेस में, क्योंकि क्यों हर कोई नहीं जाता बिजनेस में, बोले इतना पैसा है, इतनी लोग इज्जत देते हैं, और तो क्यों नहीं जाते बिजनेस में? क्योंकि फेलियर रेट भी है उसमें। तो फेलियर रेट का इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि हमको जाना नहीं चाहिए। स्टार्टअप आज वर्ल्ड वाइड देखें, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आपने देखा होगा, और स्टेट गवर्नमेंट में भी काफी बढ़ावा दे रहे हैं कि हम स्टार्ट करें। यदि आप जर्मनी का नाम सुना हो आपने, और आपको सुना ही होगा, जर्मनी का या यूरोप का विकास कैसे हुआ? तो वो जो यंग जनरेशन थी, उन्होंने स्टार्ट सोचा कि नहीं, बिजनेस करना है, और बिजनेस करना है और उसको आगे ले जाना है। जब वो बिजनेस करना सीख, आप यदि आप जर्मनी में आप जा रहेंगे, और यूरोप में मैक्सिमम, उन्होंने क्या करा, ये जर्मनी इतना डेवलप होने का कारण ये कि उन्होंने कृषि प्रधान से वो औद्योगिक प्रधान हो गए, इंडस्ट्रियल कंट्री हो गए। अब इंडस्ट्रियल कंट्री हो गए, तो अब क्या है कि इंडस्ट्रियल आपको बिजनेस में, जैसे आपने उन जर्मनी के टूल्स देखे होंगे, केमिकल्स देखे होंगे, तो वो कैसे हुआ कि स्टार्टअप्स आई, काफी स्टार्टअप्स आई। हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? और समझ में आ रहा है बच्चों लोग? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही है ना? तो जी। उनके जो स्टार्टअप उन्होंने किया, बेसिकली स्टार्टअप में उनकी यहाँ की आप देखोगे कि मशीन, BMW, फॉल्क्सवागन, और ये बहुत सी है, ऑडी है, ये सब इतनी क्वालिटी के साथ इतना सक्सेस कैसे हुई? सक्सेस ये हुई कि जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको कोई चीज करना है, और एक बोलूं कि किसी से करवाना है, तो जब आप करते हो ना खुद, तो कुछ इतनी मेहनत के साथ, लगन के साथ करते हो, और उसमें नई चीजें ऐड भी करते हो, और जिससे कि आपको लगता है कि नहीं यार, इसमें ऐसा कर दूंगा तो वो जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो वो खुश होगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, उससे मिले नहीं तो दूसरों से मिलेंगे, क्योंकि सेल बढ़ जाएगी। तो वो चीजें जब सेल बढ़ जाए, तो ये कैसे आया? जब आठ किसी, वेट हुआ ना मीटिंग में तो। हाँ, तो उसको कैसे आई? क्योंकि स्टार्टअप किया था, और वो क्वालिटी चीज लेके आया मार्केट में, और उससे उससे उसका उसका विकास चालू हुआ। इसी वजह से जर्मनी में जो कंपनीज हैं वो काफी ज्यादा है, स्टार्टअप ज्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखते हो, क्योंकि नौकरी देना आपको, मैं आप यंग जनरेशन को मैं बता दूं कि नौकरी देना इतना आसान नहीं हो रहा है, खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर में। और गवर्नमेंट तो अवॉइड ही कर रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी को लिए जाए, क्योंकि वो जिम्मेदारी हो रही है ज्यादा। और क्योंकि आपकी आगे कंट्री, यंग कंट्री होने वाले हैं, उसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है कि यंग कंट्री मतलब बहुत, आपके जैसे बहुत लोग आने वाले हैं इस कंट्री में, और जो उस एज में, देखो 10 साल की एज का डिफरेंस नहीं माना जाता, यानी आप 5 साल ऊपर मान लो, 5 साल नीचे मान लो, ये आपके एक तरह से सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर कहलाएंगे। तो कॉम्पिटिटर का कहने का इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे जलने लग जाओ। हम वी शुड ऑलवेज थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि जब आपने इंप्रूव किया तो वो इंप्रूवमेंट आपको आपके कस्टमर बेस को बनाने में मदद करेगा, है ना? और अब आपका ये क्या हुआ कि ये जब मदद में करेगा, तो उससे आप अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब आपको क्या बिजनेस में जाने का ये एक तरीका मैंने बताया कि आप क्या नई चीज लेके आ रहे हैं। थोड़ा धुनी बनना पड़ेगा। धुनी मतलब आप में धुन आ गई है कि ये करना है, तो वो करना है। यानी आपको पहली बात ये है कि, एक और बात बता दूं कि स्टार्टअप में मैं तकलीफों के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा पहले से। तकलीफें आपको माइंडसेट बनाओगे, और दोनों की तकलीफें बताऊंगा। मैं बिजनेस भी किया कर रहा हूं, और मैंने जॉब भी 10 साल किया है, तो इसलिए मैं दोनों एंगल से आपको कोशिश करूंगा कि मैं समझा पाऊं कि बिजनेस में आप जॉब में 9 to 6 आप जॉब करते हो, 9 to 6 जॉब करके चले जाते हो, फिर लेकिन इसके 9 to 6 में कुछ नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ वर्क जो कोई भी स्टार्टअप कंपनी हुआ और सिंपल कंपनी हुआ, वो बहुत ज्यादा समय मांगती है। बड़ी कंपनियों के पास क्योंकि इतना पैसा कमा चुके होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरा असाइन कर देते हैं, दूसरे लोगों को असाइन कर देते हैं, जिससे वो काम करने लगता है। तो वो, लेकिन बिजनेस में क्या होगा कि आपको 9 to 6 में काम नहीं चलेगा। सुबह 6 से लेकर रात को 12-1 बजे तक भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बेनिफिट मिलेंगे आपको। आपको वो उसके बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। उससे जो एक नौकरी करते हैं उससे कई गुना बेनिफिट मिलने वाले हैं, लेकिन उस कई गुना बेनिफिट की कीमत इस रूप में देनी रहेगी कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना रहेगा। तो एक तो आप हार्ड वर्क करना जरूर सीखें,
और जहां पर भी जैसे ऐसा जरूरी नहीं कि सभी की सभी बिजनेस स्टार्ट करने लगेंगे, लेकिन जब भी जो भी काम करें, जैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको सक्सेस करने में आपको इतने घंटे तो देने ही रहेंगे, लेकिन आप कहीं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और कहीं जॉब करने जा रहे हैं और वहां पर आप ये सोचें कि मैं बिजनेस तो अपना स्टार्ट नहीं कर पाया कुछ कारणवश, जैसे फाइनेंशियल स्टेटस नहीं थी, या फिर ऐसा लग रहा है मैंने कभी किया नहीं तो मैच्योरिटी नहीं थी, या जॉब नहीं किया तो उसका नॉलेज नहीं था, तो उसकी वजह से आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। लेकिन आप कहीं कंपनी में जब जाएं तो उसको ऐसा मान के करें कि ये मैं बिजनेस कर रहा हूं, मतलब ये जो मेरे को जॉब दिया है या ये जो मैं काम कर रहा हूं, जो मेरे को मेरी ये जिस कंपनी में आया हूं उसको सक्सेस करवाना, यदि आपने उसने सोच लिया इतना, तो मैं आपको इतना बता दूं कि 2 से 3 साल में आप अपना यदि बिजनेस स्टार्ट करोगे भी तो आपके बिजनेस सक्सेस होना निश्चित हो जाएगा, क्योंकि आपने सारी प्रैक्टिस वो जो पहले से बिजनेस चल रहा था अच्छा, उसको सक्सेस करने में और बढ़ाने में आपने लगा दी मेहनत, और वो मेहनत जो सीखी, जो मेहनत करने का तरीका सीखा, वो तरीका जब आप अपना खुद का स्टार्ट करोगे तब उसमें वो बिल्कुल सहायक हेल्प करेगा और आपको वही सक्सेस दिलाएगा। तो पहला ये कि आप तो अपना खुद का स्टार्ट करें, जहां आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल, आपके पास सपोर्ट, आपके पास स्किल, आपके पास नॉलेज है, तो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं तो जब आप कहीं कहीं जॉब भी कर रहे हो और वहां पर भी वैसे ही मेहनत के साथ जॉब करोगे जैसा एक स्टार्टअप कंपनी वाला करता है, यदि आप नारायण मूर्ति से लेकर दूसरे लोगों के आप देखेंगे ना, आपने यदि ये पैराशूट और इनके जो ऑनर्स हैं उनकी कभी आप उनकी बायोग्राफी पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किसी एक जॉब जो करता है उससे कई गुना मेहनत करी। हाँ, कुछ घंटे के लिए फेसबुक पे फोटो आपको बड़ा शानदार दिखेंगे यूरोप पे घूमते हुए, कभी वो तिनचा फाल के दिखेंगे, तो कभी लोनावाला के दिखेंगे, लेकिन वो कुछ घंटे के हैं। बाकी उसके कुछ घंटे या कुछ दिन के 365 दिन में से यदि वो 15 दिन यदि निकालते हैं तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐसे शानदार फोटो दिखने वाले हैं कि आपका मन करेगा कि ये कहाँ नौकरी कर रहे हैं या ये कहाँ हम इसमें घुस गए बिजनेस में। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके 365 में से 360 दिन वो 24/7 लगे रहते हैं। मेहनत बहुत करना रहती है, मेहनत से आपको आपकी कमियां दूर पता होंगी कि कमियां क्या आ रही हैं, तब जाके आप उसको सक्सेस कर पाओगे। तो लोग, हम जनरली, हमारा ऐसे ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम हमेशा अच्छी चीज को पोस्ट करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम में, लेकिन ये नहीं देख हम पोस्ट करते हैं कि रात को 2 बजे तक है ना वहां पर सफाई कर रहे थे अपनी खुद की दुकानों की, या आपने खुद नया बिजनेस स्टार्टअप किया है तो उसके लिए वहां से माल लेने जाना था, तो इतनी सर्दी थी तो वहां पर क्योंकि वो जो ड्राइवर है वो तैयार नहीं था, तो कार खुद चला के लेके गए और वहां से उस चीज को लेके आए, क्योंकि वो लेके नहीं आते तो कल के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा अपनी इमेज खराब होती, इमेज यानी लोगों पे इंप्रेशन गलत जाता। तो एक तो ये है कि नंबर ऑफ आवर्स आपको ये जो आप बिल्कुल टाइम का हटा दें, आप यंग जनरेशन है, आप में एनर्जी है और आपके पास समय भी है, और समय को आपने अभी समय आप फोकस होकर कुछ कर सोच लिए कि मेरे को ये करना है तो हो पाएगा। आप अभी क्योंकि यंग जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि मैं भी रहा हूँ उस एज पे, तो आप लोगों की तो इसमें हम इधर उधर बहुत जरूर मुड़ जाते हैं कि यार ये इधर मन लग गया और उधर मन लग गया, तो इसमें ना करते हुए आप फोकस होके 2 से 3 साल यदि आप कोई भी चीज करेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन सक्सेस में एक तो बताया ईमानदारी और एक मेहनत, ये बहुत जरूरी है। अब रहा कि बोले इंटेलिजेंस की बात तो आपने करी नहीं, इंटेलिजेंस की बात अब आप जब आती है जब आप ये 2 चीजें हो। कितना टाइम हो गया अभी, कुछ ज्यादा लगातार बोल रहे, सो गए होंगे बच्चे लोग। अरे नहीं हाँ, सर, आप सुन लोग रहे हैं। हाँ? जी जी सर, सुन रहे हैं, आप बोलिए सर। तो अपन स्टार्टिंग की बात करें कि जैसे आपने फार्मा फील्ड से भी काफी ऑप्शंस निकलते हैं, जैसे आपने कॉग्नोसी भी पढ़ी है, अभी हमने पिछले साल से नर्सरी स्टार्ट भी करी, हमारा दवाइयों का बिजनेस तो चल ही रहा था, और क्योंकि नर्सरी में मेरे को पौधों में बड़ा इंटरेस्ट था, कॉग्नोसी पढ़ी ही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो जब कोई भी चीज आप इस टाइप से पहले करे हुए हो, पढ़े हो, नॉलेज गेन किया, किताबें पढ़ी हो, तो आपको एक ऐसा ज्यादा टफ नहीं लगेगा। मेहनत तो करना पड़ेगी, कोई भी किसी भी स्टेज पे आप नए स्टार्ट करोगे तो बिजनेस मेहनत तो करना पड़ेगी। मैं इसमें कोई स्टूडेंट्स कुछ आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन मन में आ रहा हो, देखो पहली बात तो कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, ये आप ध्यान में रखें। और इसमें बिजनेस का है, बिजनेस में बड़े बड़े प्लेयर भी फेल हो जाते हैं और छोटे छोटे प्लेयर भी जैकमा बन जाते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल ऐसा हेजिटेट नहीं करें, क्वेश्चन पूछें।
और कुछ बड़ा क्रूड आंसर भी है मार्केट में, वो भी सहन करना पड़ते हैं, और कुछ बड़ा लॉलीपॉप वाले भी आंसर हैं, तो वो भी सहन करना पड़ेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछें और आपकी क्या बेसिक क्वेरी है, तो शायद मैं उस पर और आगे एलोबरेट करूंगा और दूसरे लोगों को भी उससे मदद मिले। Students can now start asking the question. If any one of you is having any of the queries, you are pleasure. Sir, हाँ बोले। sir, my name is Yuvraj Chauhan. अच्छा, वीडियो आप ऑन कर सकते हैं तो और अच्छा वीडियो ऑन रहेगा, करें तो बेटा। फेशियल एक्सप्रेशन भी Yes. मिलेंगे देखने। Thank you. Good afternoon, sir. My name is Yuvraj Chauhan. I pursue my B Pharmacy from Chameli Global Institute, Indore. हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर वेरी थैंक यू आपका प्रीवियस टाइम देने के लिए। सर हमारे एक दो बेसिक क्वेश्चन थे सर, जैसे कि कोई सा भी स्टार्टअप चालू करने के लिए सिर्फ एक हमारे जो जैसे भी हमको कोई सा स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो सर एक आइडिया ये जिसके थ्रू हम हमारी फंडिंग रेज कर सकते हैं, या उसके लिए और कुछ कौन से मेन फैक्टर हो सकते हैं? नहीं नहीं, एक और लास्ट का क्वेश्चन क्या था आपका, क्या पूछ रहे हैं आप? सर हमारे कहने का मतलब है सिर्फ एक आइडिया के बेसिस पे हमारा फंड रेज कर सकते हैं, या इसमें और कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं हमारा? अच्छा, हाँ ठीक है, चलो इसी पे अब आइडिया, आपका आइडिया इज नॉट ओनली, मतलब आइडिया इज नॉट इनफ, देयर आर सो मेनी आइडियाज इन मार्केट, है ना। आइडिया को इम्प्लीमेंट करना और उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो बोले हैं उसको, कि जैसे आपने मान लो आपको, जैसे आपका कुछ एक भी आइडिया आया, लेकिन वो ना अभी मन में घूम रहा है ना, इधर इधर से वो इधर से नीचे नहीं गया ना लोगों तक, तब तक वो कोई काम का नहीं है। कब उसके लिए आपको ये जरूरी है कि उसका एक इनिशियल मॉडल तो बनाओ, एक इनिशियल मॉडल बनाओ जिसमें मान लो वो ऐसा डमी टाइप भी हो, लेकिन एक लोगों को, आप अपने आइडिया को लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप उसको एक फिजिकल रूप दे दोगे ना कि हाँ ये है हमारा वर्किंग, ये मॉडल है हमारा। अब उसमें देखो, उसको मॉडिफाई करके हम उसको फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसका पहले आप एक ना एक कुछ तो मॉडल बना के दो लोगों को जो फंडिंग देंगे। आपकी जेब के पैसे तो कोई समस्या नहीं है, जो मन में आए वो आइडिया लगाओ, आज आइडिया आया, शाम को आइडिया आया, जो मर्जी करो, लेकिन आपके पैसे जाएंगे तो आप खुद ही मन ऐसा होने लग जाएगा कि कहाँ लगा रहा हूँ पैसे में, थोड़ा समझ के लगाऊं। तो पहले, सबसे पहले आप आइडिया को एक स्टार्टिंग पॉइंट पे, एक छोटे पॉइंट पे, आपको लगता है कि यार मेरे को है ना ये डिजाइन है ना, ये ट्रैक्टर इस टाइप का दिखना चाहिए, तो आप उसको मिट्टी का बना लो और उसको एक डमी टाइप में लोगों के फंडिंग, जब पैसे जब मिले, इवन आपके घर वाले पैसे जब देंगे, जब वो कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ हाँ यार लग तो रहा है कि कुछ सही कर लेंगे। आप है ना, जैसे जैकमा की बताता हूँ मैं, जैकमा आप सुना है ना, अलीबाबा? जी सर। है ना, अलीबाबा का उन्होंने क्या किया कि जब स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने 10 लोगों से ऐसे रैंडमली पूछ लिया, क्यों ये ऐसा ऐसा है, कैसा रहेगा। तो एक एक्चुअली ऐसा हम एक तो होता है कि अपने आइडिया पे पूरा 100% है कि क्या हम करेंगे और हो जाएगा, और दूसरा है कि एक थोड़ा सा एक गैस करना कि यार लोगों का क्या इंप्रेशन है इस आइडिया के लिए, है ना। बहुत से, क्योंकि देखो नई चीज होगी ना, नई चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती मार्केट में, कोई भी चीज हो, नई चीज एक्सेप्ट नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं है या बुरी, या वो अच्छी नहीं है या अच्छी है, दोनों मतलब नहीं निकाले जा सकते। टाइम विल टेल कि वेदर इट इज, कुछ आइडियाज ऐसे भी होते हैं जो समय से पहले आ जाते हैं और उसके वजह से वो फेल हो जाते हैं। समय से पहले यानी आज से 10 साल बाद आने चाहिए थे, लेकिन उस बंदे के कॉन्सेप्ट में अभी आ गया और उसने लॉन्च कर दिया, और लॉन्च करा क्योंकि अभी का आइडिया, अभी के लोग तो उसके लिए मैच्योर ही नहीं हुए थे, और उसके वजह से वो फेल हो गया, लेकिन 10 साल बाद सक्सेस हो जाएगा। कुछ आइडिया ऐसे भी होते हैं जो बहुत पुराने हो गए, अब नहीं चलेंगे ये आइडिया, क्योंकि अब जैसे किराने की दुकान खोलने का आप कोई बोले, तो किराने की दुकान विल बी लाइक, है ना, कि आपको कुछ नया लाना पड़ेगा। यू हैव टू, व्हाई द पीपल शुड कम टू योर शॉप यदि ओपन कर रहे हैं या कोई नया चीज कर रहे हैं, आपके पास क्या है जो दूसरे से पहले से चला आ रहा है, उसके से हटके कस्टमर आपके पास आए। तो आइडिया जो आपके पास आ गया है, उसके फंडिंग का देखो, हाँ आइडिया का फंडिंग का जो आपने बेसिक क्वेश्चन पूछा, उसमें अपन ये बोलते हैं कि आइडिया का बैंक के पास पैसे लेने जाओगे ना, तो बैंक ये बोलेगी वर्किंग मॉडल बताओ इसका, कि है ना ये बेचोगे किसको, अच्छा इसमें मार्जिन कितना मिलेगा, है ना। अब मार्जिन मिलेगा तो क्या आप इसमें सरवाइव कर पाओगे, और ये प्रॉफिट कितने दिन में आएगा, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा,
ये बैंक पूछेगी। यही कि सिमिलर बैंक भी कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने छोड़ दिया है तो पैसे दे देगी। बैंक इज ए बिजनेस। वो बिजनेस को पैसे जब लगाती है जब उसको लगता है कि यार ये हम पैसे दे रहे हैं, ये पैसा भी निकाल के दे देगी, साथ में They are also doing it. तो बिजनेस जब आप मेरे से बोलो कि ये सर ये ना 10,000 या 50,000 लगाना है इसमें, तो मैं क्या सोचूंगा, या आप मेरी जगह हो तो क्या सोचोगे, यार ये मेरे 50,000 1,00,000 रुपए निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो आपके जो आइडिया है वो आइडिया आप एक तो या तो एक लेके आ जाएं, उसको समझ लें, और या उसको ऐसा वर्किंग मॉडल बना लें और लोगों को बताएं। और फिर बहुत लोग, अच्छा आइडिया होगा तो लोग आगे होकर पैसे लगाने लग जाते हैं कि एक काम करो, चलो ठीक है, लेकिन मेरे को ना उसका इक्विटी कितना दोगे, मतलब उसका शेयर कितना दोगे आप। मतलब कंपनी में मान लो 10 लाख 5 लाख की कंपनी हो गई है, अभी मान लो 20,000 की कंपनी है, तो उसमें से कितना बोले 5%, मतलब भैया 10,000 का काम, मतलब ऐसा ही जो 1,00,000 रुपए की है तो उसमें 5% मतलब अपना 5,000 का काम हो गया, है ना। तो वो जो पैसे लगाएगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो जो भी पैसा लगाता है वो अपना प्रॉफिट देखता है, और वो देखता है कि इसमें अच्छा आइडिया है। तो आप जब किसी के पास आपका आइडिया देखना है कि ये वर्थ है कि नहीं, एक बहुत साधारण सा एक तरीका यही है, आप अपना आइडिया लेके जाओ और बोलो कि यार इस पे मेरे को 2,00,000 रुपए चाहिए, आप दोगे क्या। तो वो बोलेगा कि 2,00,000 रुपए, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि मैं 10% 20% शेयर दे दूंगा आपको, मेरी कंपनी का इक्विटी कर दूंगा, 10-20% इक्विटी में हो जाएगा। तो वो जब उसको, या आप 10 लोगों से पूछोगे और पैसे मांगोगे, हो सकता है जेन्युइनली लोगों के पास पैसे नहीं हो, लेकिन जिनके पास पैसे इंदौर क्षेत्र में तो काफी है, पैसे की कमी नहीं है इंदौर में। तो इंदौर में आप जाओगे तो लोग, जहां आपका आइडिया अच्छा होगा तो पैसे मिल जाएंगे। मैं शायद आपका क्वेश्चन में कहीं गलत डायरेक्शन में तो आंसर नहीं दे पाया, आपको कुछ इसमें और तो नहीं है कुछ। नो सर, आप सही थे, बट मैं जो एक क्वेश्चन और करना था कि सर जो आप, मैंने बहुत सारी कॉमन चीजें देखी जिसमें ना सिर्फ आइडिया के बेसिस फंडिंग रेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज सर उसमें ना आपने कुछ यूएसपी नहीं करी हो, जब तक आपको कुछ ऐसे फंडिंग नहीं मिल सकती, आपका नंबर्स भी होने चाहिए। सिर्फ आइडिया हाँ आपको फंड रेज करने में हेल्प नहीं करेगा सर। सही है, सही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो आइडिया ऐसा है ना कि आपके मन में जो आइडिया आ रहा है हो सकता है वो किसी और के भी मन में आइडिया है ना। अब जब वो आइडिया मन में आएगा तो फिर कैसे काम चाहिए, इसीलिए बोलते हैं पहले एक मॉडल लेके आओ, एक बना के दो, तो कम से कम पेटेंट कॉपीराइट इस टाइप का कुछ कर ले, ताकि कोई इसका कॉपी नहीं करे। कॉपी नहीं करेगा तो अपने पास रॉयल्टी मिलेगी, तो जो भी इन्वेस्टर है उसको लगेगा हाँ टिक जाएंगे, मार्केट में सक्सेस भी कर लिए, तो मेरे जो 10,00,000 रुपए लगे थे वो 1 करोड़ रुपए बन के आएंगे। ये अब आइडिया तो आपके दिमाग में आया, कहो तो वो किसी और को भी आ रहा हो, है ना। और वही की वही दुकान, चाय की दुकान है, चाय की दुकान बोले मेरे को भी आइडिया आया था यहाँ पर चाय की दुकान पे खोलने। व्हाट इज न्यू, कुछ नया क्या है जो आप इसको जिससे जो दूसरा आपका, जैसे आपने मान लो सक्सेस करने लग गए, और सक्सेस करते ही ना जरा सा आप कमाने लग गए कि दूसरा कॉपी कर लेगा, है ना। तो कॉपी नहीं हो, आपकी रेसिपी क्या है जिससे कॉपी नहीं हो आसानी से, उसके पीछे कुछ तो गुण होगा जो आसानी से नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से और कोई और पूछिए कोई। थैंक यू सर। हाँ Students, do you have your more questions? You are most Yes, welcome. ma'am. Yes, Divyam. सर हमारा एक क्वेश्चन था, जैसे कि सर अगर किसी के पास स्किल्स वगैरह है, नॉलेज है, लेकिन सर अगर वो फाइनेंशियली अगर कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, तो हाँ। सर वो इंडस्ट्री में ज्वाइन करके एक्सपीरियंस गेन करके बाद में स्टार्टअप अपना कर सकता है कि सर पहले से करेगा या नहीं कुछ और हेल्प नहीं, लेगा? देखो आप यदि स्टार्टअप की बात करोगे तो स्टार्टअप का जो केएफसी का नाम सुना है? नहीं Yes, सुना sir. होगा, चलो मैं, है ना, केएफसी वालों ने, जो उनके ऑनर हैं, उन्होंने 67-65 की एज में स्टार्ट करा था। स्टार्ट मतलब जीरो लेवल पे थी, एंड दे स्टार्टेड, मतलब इससे पहले कुछ नहीं था। 60 के एज में बना के ना, ये बहुत बड़ी बात, मतलब स्टार्टअप की कोई एज नहीं होती, एंटरप्रेन्योर की कोई एज नहीं होती। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सक्सेस करना। अब अभी अपन बात करें जुकरबर्ग जो फेसबुक का है, कितने क्या उम्र है, कुछ भी नहीं है ना, यंग एज है बिल्कुल, लेकिन यंग एज में कर लिया स्टार्ट, सक्सेस कर ली, बहुत अच्छे लेवल पे। जो दूसरे लोग हैं जो पूरा जीवन निकल गया उनका, उस लेवल पे नहीं पहुंचे, है ना, लेकिन उन्होंने कर लिया। तो स्टार्टअप की पहली बात, कोई एज नहीं होती, कोई जल्दी नहीं है।
मेन ये है कि डिप्रेशन में नहीं आना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में खोल, मैं ऐसा, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि हाँ, लेकिन आपको पास जितने ज्यादा लाइफ के टाइम समय मिलेगा और वही आपको आगे जाके उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी आप अपने जीवन काल में उसका अच्छा देखो, स्ट्रगल, बिजनेस इज ए स्ट्रगल, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिए कि बिजनेस में स्ट्रगल बहुत है, आपकी नौकरियों से कई गुना, नौकरियों से कई गुना, ये ध्यान रखना। नौकरियों से एक नौकरी से कई गुना आपका बिजनेस में स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल कर लिया आपने और तो आपका जो आगे बेनिफिट मिलेगा, आपको रॉयल्टी मिलेगी, आपको जो घूमने का मिलेगा, लोग आपका इज्जत करेंगे, वो कई गुना होगा एक जॉब से। तो उसको जॉब को, इसलिए आपको अभी ये देखना है कि मैं स्टार्ट कभी भी से करूंगा, लेकिन अपने पैसे इकट्ठा करके करूं, माँ बाप के करूं, लेकिन मेरे को आ जाएगा कि मैं कॉन्फिडेंस है मेरे में, तब आप तब करोगे, वो ज्यादा बेटर है बजाय कि तो भाई यार फ्रेंड ने और स्टार्ट कर लिया है यार, वो उसके यहाँ पर, वो तो उसके घर वाले बोल रहे थे कि यार वो तो अच्छा कमाने लग गया है उसमें, वो मत देखो। अपनी, सबका जीवन अपना अपना है, आप सब अपना अपने अपने टाइम से अपने अपना लेके सब कुछ बोलते हैं ना, जो अपने यहाँ पर बोला गया है कि अपनी अपनी किस्मत है, तो उसमें वो मत देखो, उनका मत देखो, हो सकता है आपकी उससे कई गुना ज्यादा अच्छा काम करने वाले। तो डोंट थिंक अबाउट द टाइम कि यार अभी टाइम निकल गया तो स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप हो, जब तक स्टार्ट कर सकते हो चीजों में। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। हाँ, Okay, I think now we have come with the end of this session. अच्छा, इसमें मैं आपको, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताऊं कि लो। दो पोजीशन डिप्लोमा से और 2 पोजीशन, हेलो हेलो, जी सर बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, 2 पोजीशन डिप्लोमा से और 2 पोजीशन डिग्री से। यदि कोई आइडिया, अपने आइडियाज लेके आना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि मेरे आपके यहाँ से मैं सीख के और आपका सपोर्ट से मैं कुछ करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे 2 डिप्लोमा से 2 डिग्री के लिए एक तरह से ये ऑफर है, जहां पर वो यदि वो आते हैं और यदि जो मैंने अभी तक समझाया और वो उस पर अमल भी करते हैं, तो मैं इतना अभी तक का रिकॉर्ड इतना बोल सकता हूं कि उनका 2 से 3 साल में वो एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और कंपनी और या कुछ ऐसा बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो ऐसे मेरे तरफ से ये ऑफर है, आप क्योंकि आप लोगों ने बुलाया, तो उसके लिए मेरे तरफ से ये है कि 2 लोगों को डिप्लोमा से 2 डिग्री से, जहां पर मैं अच्छा उनको एक मेंटर का काम करके और उनको एक ऊंचाई पे ले जाने का काम कर सकता हूँ। फाइनेंसर से लेकर फाइनेंसिंग से लेकर टेक्निकल सपोर्ट से लेकर ये चीजें उनको एक प्रोवाइड कर सकते हैं। बट आई नीड बेसिकली हार्ड वर्किंग एंड ट्रस्टवर्दी पीपल जो हैं, यदि वो हैं ये दोनों चीजें, और थोड़ा बहुत ऑफकोर्स इंटेलिजेंट, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग, कॉमन सेंस हो, तो मैं उनको ऑफर एक तरह से दे रहा हूँ कि वो चाहें तो कर सकते हैं, और उनको मैं आगे पहुंचाने में काफी मदद करूंगा उसमें। थैंक यू वेरी मच सर। Sir, I was having a question, sir. हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर बिजनेस में या स्टार्टअप में सर नेटवर्क भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो सर हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, और ये कहा जाता है कि यू आर द एवरेज 5, मतलब जो 5 व्यक्ति के साथ आप रहते हो उनकी एवरेज आप ले जाते हो, तो वो नेटवर्क कैसे बिल्ड करे और वो 5 बंदे कैसे ढूंढे? 5 नेटवर्क बिल्ड का ऐसा है कि पहले तो नेटवर्क बिल्ड में आप पब्लिक प्लेस पे जहां पर भी जाते हैं, पहले तो आपके पास एक कुछ नया, एक कुछ चीज होनी चाहिए जिससे आप इंटरेक्ट बात कर पाए। आपके पास कुछ है नहीं और आप बोलो मैं नेटवर्क करना चाहता हूँ, नोबडी विल टॉक, मतलब बात भी कर लेंगे लेकिन आपसे, आपको वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, मतलब आप क्या स्टार्टअप लेके आ रहे हो कि कुछ नया लेके आ रहे हो, है ना। आप भी किसी ऐसी कोई आके बोले नहीं मेरे साथ नेटवर्क बना लो, बोले फालतू थोड़ी है, वेले थोड़ी बैठे हुए हैं, बहुत सारा काम है ना। आप हमारे लिए काम के कितने हो, आप हमारे लिए काम के हो, तो आप हमें नंबर भी सेव कर लूंगा कि हाँ अरे ये बंदा कभी काम में आ सकता है ना। तो आपको अपनी वर्थ लेके जब जाओगे तो वर्थ आप बताओगे, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका नेचर और इंटेलिजेंट बताओगे, इंटेलिजेंट है ना आपका, एक कॉमन सेंस इस टाइप से बताओगे, तो वो आपको एक नेटवर्क आपका ऐसे बनते जाएगा। और दूसरा रहा कि आप एवरेज 5 के हो, ऐसे किताबों में लिखा हुआ है और सही भी है एक तरह से, एवरेज 5 हो, लेकिन एवरेज 5 की आपको हो सकता है कि आपके एवरेज 5 आप मान लो, फॉर एग्जांपल कोई इंसान
कोई ऐसी जगह पे रहता है जहां पर सभी की सभी मजदूर है, ठीक है, पंचम की फेल, गोमा की चल, इस टाइप से कोई हो रहा है कि भैया सराउंडिंग अच्छी है ही नहीं, ये बाय बाय बर्थ ऐसा हुआ, तो बाय बर्थ में आपके पास 5 लोग, वो जरूरी नहीं कि वो चुनो, आप 5 किताबें चुन लो ना, आप महीने की 2 महीने की 5 ऐसे बड़े राइटर की किताबें चुनो, वो साला इंटरनेशनल इंसान हो, तो आप इंटरनेशनल का एवरेज निकालोगे तो आप बड़े बड़े बनते जाओगे। तो 5 इंसान जरूरी नहीं कि आसपास ही हो, 5 बड़े इंसानों की किताबें पढ़ लो और उनकी उनकी सॉफ्टवेयर अपने में इंस्टॉल कर लो, तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो वो 5 सराउंडिंग के एवरेज निकालोगे तो आप भी बड़े बन जाओगे। Yes, sir. I am doing that only. और मैं ये जानना चाह रहा था सर, what are the key skills that one should have, sir? और फिर फॉर सर आप व्हाट, फॉर सर व्हाट? किसी भी सेक्टर में मान लीजिए अगर अपन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं तो हाँ। कौन कौन सी स्किल्स वन शुड हैव सर, along with the theory and practical? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, हाँ। हार्ड वर्किंग और ईमानदारी, ये 2 चीजें है ना, तो कहीं पर भी इंसान पहुंच जाएगा। धीरू भाई के पास हार्ड वर्किंग था और Yes, yes, sir. उन्होंने बहुत ऊंचाई पे, कोई एजुकेशन नहीं थी, है ना, तो हार्ड Yes, sir. वर्किंग इतना होना चाहिए इंसान, और ईमानदारी, ये दोनों चीज चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। And sir, can you just recommend some of the books for reading? अरे मैं देखो, मेरे बुक का तो ऐसा है कि मेरा 3-4 किताबें मैं रोज, अभी तो कम हो गई मेरी, महीने साल की 35-40 किताबें अलग से अदर दिन सब्जेक्ट पढ़ा करता था, लेकिन अभी तो थोड़ा कम है, बट मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है, मेरे तो क्या आती रहती हैं किताबें। अभी ये आपने ये पैराशूट वाले का उनका बुक पढ़ रहा था, तो जस्ट मैंने इसलिए एग्जांपल दे दिया, उनकी भी अभी नई लॉन्च हुई है, और एक और आई है किसी प्रोफेसर की है न्यू स्ट्रेटेजीज के ऊपर, तो वो पढ़ रहा था। सो देयर आर सेवरल बुक्स, और हो सकता है कि मेरा लेवल अभी थोड़ा अलग हो गया और मैं रिकमेंड करूं और वो आपको बोरिंग लगने लगे, ऐसा भी होगा। तो नहीं सर, you can share तो your ये experience, sir. हाँ, तो एक काम करेंगे कि आप है ना, मेरा नंबर आप लोगों के पास मिल जाएगा, तो मैं उसमें शेयर कर दूंगा। अभी मेरे पास तो ऐसा बहुत रैक, अभी तो बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, कुछ ऐसा, तो मैं जैसे बुक्स कि वो नाम शेयर करने में भी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी बेसिक वो रिच डैड पुअर डैड और इस टाइप की तो आपको सुना ही होगा। सर जैसे कि अभी मेरे पास जो बुक्स अवेलेबल है सर, जैसे कि ये रिच डैड पुअर डैड अभी मैंने हाँ ये, पढ़ रखी है, हाँ ये एक तो ये है, एक ये थिंक एंड ग्रो रिच है, और राइट नाउ आई एम लर्निंग दिस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फॉर स्टॉक मार्केट। ये भी अच्छा है, बढ़िया। हेलो सर, हेलो, हाँ जी, हाँ, एम आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ, हेलो सर, तो इसके अलावा सर विच बुक्स कैन I will give you one, just WhatsApp me, I will give you a list. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ Yes. सर आई एम ऑडिबल? हाँ, बोलो। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था सर, बेसिकली जैसे कि अगर मेरे फ्रेंडों से बात होती है तो सर उनमें एक फियर रहता है ऐसे कि मान लो अपन ने ऐसा कुछ बोला कि अपने को बिजनेस करना है, तो अभी एक युवराज गेमले भाई ने एक बात बोली, जैसे कि उन्होंने फ्रेंडों की बात बोली कि मेरे को 5 फ्रेंड्स चूज करना है। तो सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सर हम किसे अपने फ्रेंडों को कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमारी लाइन में आए और कुछ अच्छा करे। उनके मन से एक फियर हमेशा ही रहता है कि जैसे कि अब तो वो फार्मेसी कर रहे हैं, तो सर उसको बिजनेस के बारे में अगर बोलेंगे तो वो हमेशा से ही एक हेजिटेशन होगा उनके मन में कि ये चीजें सही नहीं है कहीं तक मेरे लिए। तो सर एक ऐसा फियर कैसे दूर करें, क्योंकि सर मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको जल्दी आना है तो अकेले चलना होगा और दूर तक जाना तो सबको साथ में लेकर जाना होगा। हाँ, वो आपने स्टेटमेंट दिया अकेले, पहला स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट क्या था वो अकेले वाला? सर आपको जल्दी जाना हो तो अकेले चलना होगा, बट दूर तक जाना हो तो साथ में लेके चलना होगा। हाँ, लेकिन पहले आपको चलना रहेगा मेन, और चलना आप सीख जाओगे तो दूसरे लोग आपके साथ में आ जाएंगे। आपकी सक्सेस आपको पहले करना रहेगी, बिना सक्सेस के आपके साथ कोई नहीं आएगा। सब ये सोचेंगे कहीं डूब नहीं जाए, और अब वो नहीं सोचेंगे तो उनके पेरेंट्स सोचेंगे, उनकी यदि शादी हो चुकी तो वाइफ सोचेगी कि मेरे यदि ये कहीं इसमें ज्वाइन कर लिया तो बच्चे को खाने का कहाँ से आ जाएगा, उधर
तो साथ में अच्छा है, सबका साथ होना चाहिए, लेकिन सबके साथ के पहले खुद का विकास होना, खुद का विकास है ना, खुद को रिस्क लेनी पड़ेगी। आप रिस्क लोगे ना, तो रिस्क लोगे तो तब कहीं और उसको रिस्क को सक्सेसफुल बना दोगे कि नहीं, आप तुम्हें वो रिस्क लिया था लेकिन अब रिस्क नहीं बची, तो लोग आपके साथ आ जाएंगे। तब आपकी चॉइस रहेगी कि उनको साथ लेना है या नहीं लेना है। लेकिन और उसके पहले आपकी चॉइस नहीं है कि सबको साथ लेके चलें, क्योंकि सबको डूबने का काम आपने नहीं ले रखा है। आप सक्सेस हो जाओ, उसके बाद सबको सक्सेस करने का ठेका कर ले सकते हो, लेकिन सबको डुबाने का ठेका नहीं ले सकते। तो सबको साथ तभी होगा जब आप सक्सेस हो जाओगे पहले। तो सबका साथ बाद में, पहले खुद का सक्सेस जरूरी जी सर। है। मतलब ऐसा कठिन, थोड़ा टफ वर्ड लग रहे हो तो उसको बुरा मत मानना, रियलिटी है। ना सर। Okay. Thank you, everyone. I think now we have finished with all our question answer round. Hope all have gone through the questions. Nobody is having any query now. Hope we are moving towards the end of this session. So at the end of this session, on behalf of Chamiji Devi Institute of Pharmacy, I would extend a really hearty vote of thanks to our speaker, Dr. Rajesh Rathore sir, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in future events. Sir, your thoughts have enlightened our minds and have shown us new path. A special mention to our respected principal, Dr. Arun Kumar Gupta sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillar of strength. With a deep sense of appreciation, I would like to thank our lovingly faculty members for their untiring efforts. Finally, I would like to thank our budding rock stars who had made this event a success. Once again, thank you all. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. So now I can leave? Yeah, sure, sir. Thank you. Thanks a lot, okay. sir. Okay, so shall we end the meeting? जी मैम।